مجلس اتحاد المسلمین کے بہادرپورہ رکن اسمبلی محمد موسم خان نے انیس الغربا برہان شاہ صاحب درگاہ اور اسلامک سینٹر کی زیر التواء تعمیری کام کے معاملے میں فنڈز کی کمی کا مسئلہ اٹھایا اور حکومت سے کہا کہ وہ جلد از جلد ان کاموں کو مکمل کرے۔ دیکھیے موسم خان کا کیا کہنا ہے۔ ہو چکا ہے، آج 20 کروڑ روپے کی کمی کی طرف سے وہ تعمیر وہاں پر بند ہو چکی ہے۔ میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسا انیس الغربا ہے، برہان شاہ صاحب کی درگاہ ہے، وہاں پر بھی فنڈز کی کمی کی طرف سے کام نہیں ہو رہا ہے، اور اسلامک سینٹر کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے زمین کو الاٹ کر چکا ہے اور وہاں پر آج تک بھی کام سٹارٹ نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو تینوں بھی ہے، انیس الغربا ہے، برہان شاہ صاحب کی درگاہ ہے، اسلامک سینٹر ہے، یہ کام کب سٹارٹ ہوں گے اور جلد سے جلد آپ کام کرائے تو یہاں کی حیدرآباد کی عوام کے لیے سہولت ہوگی۔ شکریہ۔ لنگయ్య గారు అధ్యక్ష మోదీ సరుకుల అసెంబ్లీ మౌజం ఖాన్ साहब बोले हैं, नोट कर लिया गया अध्यक्ष। లింగయ్య గారు تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں ڈگری اور پی جی امتحانات منعقد کرنے کے لیے حکومت کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ امتحانات کا انعقاد ریاستی حکومت کا پالیسی فیصلہ ہے اور وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے حکومت اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ کووڈ کے قواعد پر عمل کرتے ہوئے امتحانات کا انعقاد عمل میں لائے۔ کورونا وائرس وبا کے دوران امتحانات کے انعقاد کے خلاف دائر کی گئی مفاد عامہ کی کئی درخواستوں کی سماعت کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سنا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و چندرائن گٹا رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ اسمبلی میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آلیر انکاؤنٹر کیس میں SIT رپورٹ پیش کرے اور اس کے متاثرین کو انصاف دلائے۔ دیکھیے اکبر الدین اویسی کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے۔ اپریل 2015 کو نلگنڈا ڈسٹرکٹ میں آلیر کے مقام پر 5 مسلمانوں کو انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا، ان کو مار دیا گیا تھا، اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان معصوموں کو جن پولیس والوں نے گولی مار کر ان کو ہلاک کیا، ان کی جان لی، ان کے خلاف بھارت چین سرحدی معاملے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت سے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ لداخ میں 20 جوان اپنی جان کیسے گنوا بیٹھے۔ دیکھیے بیرسٹر اسد الدین اویسی کا اس ضمن میں کیا کہنا ہے۔ تیسری بات وہ یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ 1000 اسکوائر کلومیٹر پر چین کا قبضہ ہے۔ چوتھا، اس سٹیٹمنٹ میں تو امید کر رہے تھے کہ راجناتھ سنگھ موڈی سرکار کی طرف سے دیش کو بتائیں گے کہ ہم نے چین سے کہا کہ اپریل میں جو سٹیٹس کو اینٹے تھا وہ ریسٹور ہونا پڑے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ ملٹری کو کہہ رہے ہیں بات چیت کرو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو لائن لینی چاہیے۔ ملٹری جنگ لڑنے کے لیے ملٹری کا ٹاک کرے گی، یہ کب سے ملٹری ڈپلومیٹک افیئرز میں آ گئی؟ پارلیمنٹ کے رولز میں یہ رول ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے میں کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے تو اس کو میڈیا میں اگر رپورٹ نہ ہو تو وہ رولز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس پر ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، اور ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ بھئی کم سے کم مجھے تو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ میں اپنے جانب سے ان 20 بہادر سپاہی جو ہمارے مارے گئے ان کو ٹریبیوٹ دے سکوں۔ میں سرکار سے پوچھوں کہ کس نے مارا ان کو، اس رات ہوا کیا تھا، کیسے ان کی موت ہوئی۔ یہ سوالات تو ہونے چاہیے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میڈیا میں رپورٹ ہو تو آپ رول ہے پارلیمنٹ میں، مگر میڈیا کو سلیکٹیو لیک آپ کرتے ہیں، کیوں نہیں روز بریفنگ ہوتی ہے؟ کاچیگوڑا پولیس اسٹیشن حدود میں نامعلوم حملہ آوروں نے ایک شخص کا بے رحمانہ انداز میں قتل کر دیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کاچیگوڑا کے ساکن 38 سالہ سید الو پیشے سے لیبر بتایا گیا ہے۔ نامعلوم حملہ آوروں نے راجپنٹا بستی نمبولی اڈا نالے کے پاس سر پر وزنی پتھر ڈال کر راہ فراری اختیار کر لی۔ اطلاع کے ساتھ ہی کاچیگوڑا انسپکٹر حبیب اللہ نے فورنسک اسکواڈ کے ہمراہ مقام واردات کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں ناج کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانے عثمانیہ منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI हैदराबाद में दाखिलों के लिए 21 सितंबर को काउंसलिंग मुनक्किद की जा रही। डॉक्टर अर्शिया आजम प्रिंसिपल ITI के मुताबिक काउंसलिंग का सुबह 9 बजे ITI मानो कैंपस गच्ची बौली में आगाज होगा। मजीद तफसीलात यूनिवर्सिटी वेबसाइट mano.edu.in से हासिल की जा सकती हैं। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. अवामी मसाइल के हल के लिए मजलिस की जानिब से वक्तन फवक्तन मुकामी सतह पर ही नहीं बल्कि रियासती असम्बली की सतह पर भी नुमाइंदगी की जाती रही है। मौजूदा मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के दौरान पुलिस की जानिब से न सिर्फ गाड़ियों की दस्तावेजात की जब्ती बल्कि बड़े पैमाने पर चालान आयद किए गए। मजलिसी रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने रियासती असम्बली में स्पीकर के जरिए हुकूमत को तरकीब दिलाई कि वो न सिर्फ चालानात जब्त शुदा दस्तावेजात वो गाड़ियां भी फौरी रिलीज करे। उन्होंने शहर में कम रफ्तार से आने जाने वाली गाड़ियों पर हेलमेट के चालानात न करने का मशवरा दिया और मजीद कहा कि वो जो गाड़ियां तेज रफ्तार और बेढंगे तरीके से गैर जिम्मेदार अंदाज से चलाते हैं उन्हीं पर चालानात आयद किए जाएं। उस रिलैक्सेशन में जब लोग जरूरत के खातिर अपने घरों से बाहर निकले तो उनको भी चालानात किए गए और खुसूस कर लोकेलिटीज के अंदर जहां पर लोग जरूरत के लिए गाड़ियों पर बैठकर निकले, मैं तो ये कहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब से जो शहर में हेलमेट के नाम पर जो चालान किए जा रहे हैं, शहर में अगर पुराने शहर से निकलकर अगर हैबिट्स तक भी जाते हैं तो 20 किलोमीटर की स्पीड भी नहीं रहती, लेकिन हेलमेट के जो शख्स हेलमेट नहीं पहनता उनको चालान किया जाता है। कम से कम स्पीड के ऊपर देखकर हेलमेट के चालानात नहीं करना चाहिए। और जो गाड़ियां सीज हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स आज भी पुलिस स्टेशनों में रखे हुए हैं, तो मैं आपके जरिए होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि उन तमाम गाड़ियों को और उनके डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करवाएं। और हजारों की तादाद में चालानात किए गए तो हुकूमत की जानिब से वो चालानात को भी खत्म अगर कर दिया जाएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। मिनिस्टर गारू अध्यक्ष मौजूद रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान से बोला था, नोट किया गया और गौर किया जाएगा। अध्यक्ष सैयद अहमद पाशा कादरी रुकन असम्बली याकुतपुरा ने पैदल दौरा करते हुए पत्थरगट्टी डिवीजन और संतोष नगर डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने तरक्याती कामों पर मौसर अमल आवारी की हिदायत दी और तफसीलात से आगाही हासिल की। मुतल्लिका अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो कामों की जल्द अज जल्द तकमील अमल में लाएं ताकि अवाम को राहत हो सके। मुख्तलिफ मकामात पर अदम तकमील शुदा कामों की फौरी तकमील की करने की तलकीन की। इस दौरान अवाम ने उनसे मुलाकात करते हुए गुलपोशी की। मुकामी अवाम ने मुख्तलिफ मसाइल से मुत्तल्लिक़ शिकायत से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने अहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसोई की हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर सैयद सोहेल, महमूद कादरी, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन के अलावा सुदूर इब्तदाई मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। नेल्लूर जिले सोमासिला जकायर में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा। कड़प्पा, कर्नूल और आनंदपुर अजला में सोमासिला जकायर में पानी की ज्यादा मिकदार के सबब किसान खुशी मना रहे। श्री पोटी, श्री रामलू, नेल्लूर जिले अनंथा सग्रम मंडल सोमेसला और हौज गुज़िश्ता 3 रोज से कड़प्पा, अनंतपुर और कर्नूल अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से सोमासिला जकायर में सैलाब जैसा मंजर देखा जा रहा। श्री सैलम रिजर्वायर पोटेरी डी हेड रेगुलेटर से कृष्णा वाटर से सोमासिला जकायर में पानी की आमद मजीद बढ़ गई है। देखिए इस ज़िमन में अहदेदारों का क्या कहना है। భారీ వర్షాలు పడిన దానివల్ల మనకు హెవీగా
పెన్నా నదికి ఫ్లడ్ రావడం జరుగుతుంది. ఇవి మెయిన్గా మనకు కర్నూలు, కడప, అనంతపూరు ఆ ఏరియాలలో వర్షాలు ఎక్కువగా పడిన దానివల్ల కుందు ఆ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో పడిన పెన్నా పరివాహక ప్రాంతంలో అధికంగా పడిన దానివలన మనకు ఇప్పుడు ఫ్లడ్ సోమశిలకి 80,000 క్యూసెక్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ 80,000 ప్రస్తుతము మన సోమశిల కెపాసిటీ మనకి ప్రస్తుతం మనకి 73 టీఎంసీ అచీవ్ అయినది అగెనిస్ట్ 78 టీఎంసీ. మనము ఈ 78ని మనము ఒక 3 రోజుల్లో నింపుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అట్ ఏ టైం మనకు మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ వచ్చినా ఒక్కసారిగా మనం రిలీజ్ చేయడం కిందికి సరైన పద్ధతి కాదు కాబట్టి మనం 73లోనే మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు 30,000 క్యూసెక్స్ వరకు మనం రిలీజ్ చేస్తాం. ఆ 30,000ని ఈరోజు ఇంకా కూడా 50,000 వరకు పెంచడానికి ప్రాబిలిటీ ఉంది. అట్లా చేస్తూ మనం ఒక 3 డేస్లో 78 రీచ్ అయ్యి మనకు సోమశిల ఫుల్గా ఇంపౌండ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత సోమశిలకి సంబంధించిన కెనాల్స్ కానీ కింద సంగం బ్యారేజీ, పెన్నా బ్యారేజీ వాటికి సంబంధించిన కెనాల్ సిస్టమ్ అంతా కూడా మనము కెనాల్ సిస్టంలో వాటర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ట్యాంక్స్ అన్నీ కూడా మనము నింపడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ట్యాంక్స్ అన్నీ కూడా నింపడం జరుగుతుంది. తర్వాత అలాగనే మనము కండలేరుకి ఒక 10,700 దాకా తీసుకుంటున్నాం. కండలేరు నుంచి కూడా మనము చెన్నైకి డ్రింకింగ్ వాటర్ వితిన్ 2 or 3 డేస్లో మనము ఈ స్టేట్లో టోటల్గా 7 ప్యాకేజీలు తీసుకుంటే మనకు నెల్లూరు డిస్టిక్లోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు 2 ప్యాకేజీలు టాప్ ప్రయారిటీలో తీసుకుంటున్నారు. ఒకటి సంగం బ్యారేజీ మరియు పెన్నా బ్యారేజీ. సంగం బ్యారేజీ పనులు మనకు 86% అయినాయి. పెన్నా బ్యారేజీ లాస్ట్ ఇయర్ మనము ఈ సోమశిల 78 టీఎంసీ నింపడం జరిగింది. ఇది ఈ కన్స్టిట్యూటివ్గా అంటే ఈ 2వ సంవత్సరం కూడా మనం 78 నింపి వాటర్ దిగువకు వదులుతాం. न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 year सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकार नागा बाबू जो टीवी शूटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं, कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। नागा बाबू जो साबिक मरकजी वजीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी के भाई हैं, उन्होंने इस वायरस से मुस्बित पाए जाने की इतला सोशल मीडिया के जरिए दी है। रियासत तेलंगाना में कोरोना के 2273 नए मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,62,844 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से मजीद 12 अफराद की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की बाहैसियत मजमूई तादाद 996 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,260 मरीज रोबा सेहत हुए। इस तरह रोबा सेहत होने वालों की तादाद 1,31,447 हो गई। पीर और मंगल के दरमियान 55,636 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 883 लुआब के नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई कोविड के 22,76,222 नमूनों की जांच की गई। रियासत में कोरोना के मुस्बित सरगर्म मामलात की तादाद 30,401 है। जेजेएमसी के हुदूद में 325 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रंगारेड्डी जिले में 185, नलगोंडा जिले में 175, मेडचल मलकाजगिरी जिले में 164 और करीमनगर जिले में 122 मामला दर्ज किए गए। बकाया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए।
श्रीसैलम की हिकल के दीवारों पत्थरों के दरमियान 245 चांदी के सिक्के मिले हैं। ये चांदी के सिक्के श्रीसैलम के मरकजी घर के घंटा माध्यम के सामने सुरंग की दीवार के पत्थरों के दरमियान पाए गए। इसके अलावा एक तांबे का सिक्का, 3 तांबे के दौर के खत भी बरामद हुए। डिप्टी चेयरमैन जवाहर ने ये मालूमात हुकाम को दी। मंदिर के ईओ के एस रामा राव ने जाए वक़्त का मुआयना किया। ईओ के मुताबिक तांबे के दौर के निगरानी और कन्नड़ के स्क्रिप्ट में इसका तस्करा है। 97 सिक्के अलग से मिले, जबकि 148 सिक्के लोहे के बर्तन में पाए गए। बताया जाता है कि ये सिक्के 1800 और 1910 के दरमियान बनाए गए थे। पोटी श्रीमलू तेलुगु यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर संसिटी के आचार्य ने महकमे आसार कदीमा को उसे पढ़ने के लिए बुलाया था। इसके अलावा दफ्तर को भी इस बारे में बताया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस खित्ते में रवा माह की 7वीं और 8 तारीख को तांबे के 29 दौर के खत मौसूल हुए हैं। शिया वक्फ बोर्ड की साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी में कोरोना इन्फेक्शन की तशखीस हुई है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक उनकी सूंघने की सलाहियत खत्म हो गई है और सर के साथ साथ बदन में भी दर्द की शिकायत है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वसीम रिजवी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और साथ ही अपने राब्ते में आने वाले लोगों से गुजारिश की है कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट करा लें। इस दरमियान अपनी जहर अंगेजी और मुतनाज़े बयान के लिए मशहूर वसीम रिजवी ने अपने मुखालिफिन को लेकर एक बार फिर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। कोरोना इन्फेक्शन की जद में आने के बाद उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि कट्टरपंथी मल्लाओं मेरे कोरोना पॉजिटिव होने पर खुश बिल्कुल ना हो। कोरोना को शिकस्त देकर जल्द वापस लौटूंगा। दरअसल वसीम रिजवी कई बार मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के लिए लोगों की तनकीद का निशाना बन चुके हैं और इसीलिए उन्होंने अपने बयान के जरिए नाक़दीन को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वो कोरोना से घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि सेहतयाब होकर बहुत जल्द सियासत में वापस आएंगे। बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में लखनऊ में वाक़ सीबीआई की खुसूसी अदालत 30 सितंबर को फैसला सुनाने जा रही। अदालत ने इस मुकदमे के तमाम 32 कुलीदी मुल्जिमान से कहा है कि वो फैसले के वक्त अदालत में हाजिर रहें। मुल्जिमान में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायदीन एल.के. अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह शामिल हैं। इस मामले में सीबीआई के खुसूसी जज एस.के. यादव फैसला सुनाने जा रहे। इससे पहले 22 अगस्त को मुकदमे के स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद खुसूसी जज ने समाअत मुकम्मल होने की आखिरी तारीख में 1 माह की तौसी 30 सितंबर कर दी थी। अदालत ने मुकदमे की समाअत मुकम्मल करने के लिए 31 अगस्त का वक्त दिया था। समाअत के दौरान सीनियर वकील मुरीदुल राकेश, IB सिंह और महिपाल अहलवालिया ने मुल्जिमीन की जानिब से ज़बानी दलाइल पेश किए। नीलापति सुरेश नामी एक रॉडी शीटर उंगुल पुलिस स्टेशन में एक केस में मुलविस था, इसीलिए उसे एक केस की तफ्तीश के हिस्से के तौर पर स्टेशन ले जाया गया, लेकिन उसने परेशानी पैदा कर दी। आधी रात को स्टेशन पर उसने दरवाजे के आईनों को तोड़ते हुए अपने हाथों को जख्मी कर दिया, जिसके बाद एम्बुलेंस में पुलिस की जानिब से रॉडी शीटर को रिम्स अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, जिस पर मुलजिम ने एम्बुलेंस में सवार होकर एम्बुलेंस में मौजूद कपड़ों को आग लगा दी और देखते ही देखते आग ने एम्बुलेंस को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम मुलजिम सुरेश ने अजीब से मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकलने पर इनकार कर दिया। पुलिस ने आखिर जबरदस्ती उसे एम्बुलेंस से निकाला और एक हादसा टल गया। ताहम पुलिस की आंखों को चकमा देकर सुरेश वहां से फरार हो गया। पुलिस ने कहा है कि मफरूर मुलजिम पकड़ा जाएगा। ताहम आग लगने से एम्बुलेंस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। योगी हुकूमत में प्रधानमंत्री आवास योजना PM आवास योजना के तहत एक बहुत बड़े घोटाले की बात सामने आ रही। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कनौज जिले में PM आवास योजना के रिव्यू के दौरान तकरीबन 10,000 ऐसे लोगों को घर मिलने की बात सामने आई है जो इसके अहल नहीं थे। काबिल जिक्र बात यह है कि इस तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा। न्यूज पोर्टल के मुताबिक इस सिलसिले में बताया गया है कि सर्वे और रिव्यू का काम फिलहाल जारी है और नाअहल पाए जाने वाले लोगों के नाम फहरिस्त से हटाए जा रहे। खबरों के मुताबिक कनौज जिले में जिले सतह महकमों के 40 अफसरान PM आवास योजना देही के सर्टिफिकेशन की मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं।
कई ग्राम पंचायतों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम पंचायत अफसर और ग्राम विकास अफसर को मुस्तफिद होने वालों का सर्टिफिकेशन करना, अहलियत की जांच करनी है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने सरकारी मुलाजिमतों पर नौजवानों को मुस्तकिल करने से पहले जबरी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने पर हुकूमत को हदफ तनकीद बनाने का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने कहा है कि नौजवान अब समझ चुका है, अपना हक मांगने के लिए वो सड़कों पर उतर चुका है। प्रियंका गांधी ने गुज़िश्ता रोज भी इस मामले पर हुकूमत पर निशाना लगाया था। अपने ताज़ा ट्वीट में प्रियंका गांधी ने कहा, वाह रही सरकार, पहले तो नौकरी नहीं दोगे, जिसको मिलेगी उसको 30-35 साल से पहले नहीं मिलेगी, फिर इस पर 5 साल बेइज्जती वाली कॉन्ट्रैक्ट की, बंधवा मजदूरी, जबरी मुशक्कत। उन्होंने मजीद लिखा, और अब कई मुकामात पर 50 साल पर भी रिटायर करने का मंसूबा। नौजवान अब समझ चुका है, अपना हक मांगने के लिए वो सड़कों पर उतर चुका है। अपने ट्वीट के साथ प्रियंका गांधी ने एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें नौजवान सड़कों पर उतरकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, कौमी यौम बेरोजगार हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। ये बात तो सभी को मालूम है कि बॉलीवुड के मशहूर वो मारूफ अदाकार संजय दत्त कैंसर में मुब्तला हैं, लेकिन ताज़ा तरीन खबर ये है कि वो अपनी बेगम मानिता के साथ दुबई रवाना हो गए हैं। इस बात की जानकारी खुद मानिता ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दोनों खुशगवार मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन दुबई संजय दत्त कैंसर का इलाज करने नहीं गए हैं, बल्कि अपने जुड़वां बच्चों शाहरान और अकरा से मुलाकात के लिए गए हैं। दरअसल दोनों बच्चे दुबई में रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मानिता ने संजय के साथ अपनी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, इसमें दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देख रही है। सेल्फी में संजय दत्त क्लीन शेव नजर आ रहे और उंगलियों से विक्ट्री का निशान भी दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मानिता ने कैप्शन लिखा है, एनरोट लाइफ, यानी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। जराये से मौसूला इत्तलात के मुताबिक संजय दत्त बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद जल्द मुंबई वापस लौटेंगे। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।